आपने जितनी भी वीडियोस अभी देखी उनमें से आपका फेवरेट कौन सा था? या तो आपको कैसे लगा वो ऐसा वीडियो जो है that this inspires me, मुझे इस वीडियो से बहुत इंस्पिरेशन मिल रहा है? तो एक जो लड़की जो सिंगल स्कर्ट लगाती है और एक जो गद्दे का वो लाइक बॉक्सिंग के तो करती है, राइट, रुखसाना बेगम, या निखित आपका कौन सा? आई एम श्योर रुखसाना का वीडियो आपके लिए सबसे फेवरेट था. Geeta Fogat has caught my attention because she not only excelled in her sport and empowered other women also, Muslim women also, so that inspired me a lot. आपके करियर में जैसे अभी रुखसाना ने भी बताया कि वो मतलब वो झूठ बोल के जिम में जाती थी that she is actually a man because you know she had that. I'm sure आपके लिए इतना एक्सट्रीम तो नहीं था. After all, we do live in India, but I'm sure you had some difficulties. Yes, of course I had, because being a Muslim girl, no one supported in my family, no one supported in my district. So only my father has supported me till now, and my family also agreed. Because मैं जब starting boxing में आई थी, then I got one punch on my eye. Then मेरी मम्मी रोने लग गई थी कि बेटा ऐसे मार खाओगी तो तुमने शादी कौन करेगा. Then मैंने हंस के बोला मम्मी अगर एक बार ना ओलंपिक में मेडल आ जाएगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी. तब उन्हें पता चलेगा. तो अभी पंच लगने से भी मम्मी बोलते कोई बात नहीं आइस लगा लो. लड़के आपसे डरते हैं क्या? पहले मैं लड़कों के बहुत मार खाती थी, पर अभी मैं उल्टा मारती हूँ. आप उनको मारते हैं. मैं वही पूछ रही थी कि लड़के आपसे डरते हैं क्या? डरते हैं. दिल्ली में कोई मतलब एकेडमी में या स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो सब बोलते अरे आ गई है. ये तो मतलब क्या बोलते हैं तेलुगु में बोलते हैं कि मतलब बोल दो हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे. वो वर्ड नहीं आ रहा मुझे. ओके, लड़की थकती नहीं है ना. हाँ, उसमें बहुत एनर्जी है. वैसे तो मतलब यू आर गिविंग द बॉयज कंपटीशन. हाँ. Deepika, what about you? I mean, something like hashtag here to create. How do you incorporate that in your daily life? When I saw the video, I think the one which really stood out for me was the basketball player, and how she ended the video was she reinvents her game. And I think I really relate to that because when you get on court, you know, you got to try and change your game plan every day. You got to try and change your game every, once in 2 years. And I think that I really relate to that because we all have different stages in our careers. We have juniors, we have sub-juniors, we have seniors. And we got to keep creating new things. We got to keep, reinventing our games, to, try and win on a regular basis. So I think that video really, really stood out for me. Improvise karna, that is something that everybody in this room does, right? No matter what field we come from, as an athlete or as an MC or as photographers that we have over here, they all do that. So going specific into your workout routine, what is that one thing maybe that you have done that's a little different? See, unfortunately, you can't really hit a squash ball and on anything other than like boxing and wrestling. You can do that. You can just get up in the morning and do that. For me, I'm a very fitness oriented girl. I love my fitness. Even though whenever I'm on my summer break, I try and do a bit of fitness every morning. And for example, I think for the last 10 days, I've been very busy with my sister's wedding, but I still made it a point to get up in the morning, get on the terrace and do whatever I can, maybe just skipping or just invent something. We've got bars out there, you've got stools out there just to do a bit of push-ups and sit-ups, and you're still keeping your body healthy, and I think that's what's important. Nikhit, आपके workout में मतलब what is your daily fitness routine like? आपका we'll talk about that first and then see कि उसमें आप innovate कैसे करते हैं? I think boxing, the common thing is punching फेंकते लोग and sparring करो fight. So उसमें मतलब ये almost only यही रहता है. लेकिन आपकी fitness training है. हाँ. अभी recently मैंने treadmill try किया था power off से. एंड उसमें इतनी जान चली गई थी हमारी. जो मेरे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनर ने मुझे न्यू टेक्निक बताई थी कि उसको पुश करना है एंड आपको सारे उसमें काफ मसल्स एंड आपके थाइस में बहुत स्ट्रेंथ आती है. तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. गीता, जब आपका ट्रेनिंग चल रहा था
आई नो कि आपके सर्कमस्टांसेस बहुत डिफिकल्ट थे क्योंकि आपके अर्ली करियर में अभी तो ऑफ कोर्स मतलब यू हैव प्रूव योरसेल्फ टू द नेशन एंड देन अनफॉर्चुनेटली वी नो कि इंडिया में वैसे ही चलता है कि वंस यू प्रूव योरसेल्फ थिंग्स विल ऑब्वियसली इम्प्रूव. यस, बट अर्ली आपके करियर में मतलब मुझे पता है कि आपके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे वर्कआउट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो आप कैसे मतलब जुगाड़ करते थे? बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमें अगर फैसिलिटीज़ मिली हैं तो सीनियर लेवल में आने के बाद जब हम नेशनल कैंप्स में रहे हैं तो हमें वहाँ पे मिली हैं. और जुगाड़ की बात मैं बताऊँ तो हमारे पास जिम नहीं होता था, और जिम तो दूर की बात है, हमारे पास जो मैट जो गद्दे होते हैं वो भी हमारे पास नहीं होते थे. तो हम मिट्टी में अखाड़े में हम प्रैक्टिस करते थे, और तो पुलअप्स चिनअप्स हम करते थे, पुशअप्स हम करते थे, ईंटें रख कर उसके ऊपर हम पुलअप्स करना, सिटअप्स वगैरह, दौड़ लगाते थे बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है कि कार्डियो जितना ज़्यादा हमारा होगा वो फिटनेस के लिए वो उतना ही अच्छा है. और यस, तो मतलब यही इसी तरह का जुगाड़ कि अगर एक दो प्लेटें हैं तो उसी को घुमाते रहना, मतलब उसकी रेपिटेशन ज़्यादा करना. Right. Yes. Right. Are there any? This is for all three of y'all. Are there any like everyday items that you have ever used? मतलब दीपिका ने अभी बताया कि जो कुर्सी है उसके साथ बेंच प्रेस करना, तो मतलब घर में पड़े हुए कोई भी everyday items जो मतलब हम देखते हैं या तो बाहर गार्डन में कुछ भी देखते हैं. Have you used anything like that in your workout? यस, जब कभी हम मतलब बिजी होते हैं, ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, या फिर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि हमें जिम नहीं मिलता कई बार, तो फिर उस टाइम पर हम रूम तो हमें मिलता ही है अगर होटल में भी जाते हैं तो. लेकिन जब हम रूम में भी होते हैं तो एक तो रस्सी के साथ हम करते हैं, और या फिर पुशअप्स हम करते हैं. पुशअप या मुझे नहीं पता सब लोग जानते हैं नहीं, उठक बैठक जो इसको बोलते हैं, मोस्टली रेसलर वो करते हैं, तो उठक बैठक खूब सारे लगाते हैं, 500-700. सर बोल रहे कि वो करते हैं. Deepika, I think you were going to say something. Yeah, I think no one knows this. I mean, but you know, I always whenever after training you're supposed to stretch for about half an hour, 45 minutes to cool down. And I'm actually very lazy at that, so I just take the car and go back home. One minute, we have to ask all the girls who's really lazy about stretching after the workout. Oh, see, I don't endorse that. I do feel not you. endorse They all that. feel you. No, but I make sure, so when I get back home, I always make sure, so when I know it's not a good thing, but I always stretch on my dining table. Stretch on? On my dining table. But that's the best. Yeah, I can imagine the good stretch that's happening with something like that. We've also seen a rise of women in all your sports now, you know, and we've seen that there is a growing attention that is taking place in these various fields. So, do you think that India is now focusing well on women as athletes? Yes. यस, अगर मैं अभी रेसलिंग की अगर मैं बताऊँ वुमेन रेसलिंग की, तो हरियाणा में 30 से 40 अखाड़े नए खुल गए, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां जो छोटी लड़कियां हैं वो उसमें आ रही हैं और आना चाहते हैं. हमारे खुद के अखाड़े में मेरे पिता कोच हैं, तो हमारे घर पे भी अखाड़ा है, तो उसमें हर रोज़ दूसरे दिन मतलब मैं कहूँगी कि हर रोज़ उनके पेरेंट्स लड़कियों को लेके आते हैं कि रेसलिंग सिखाओ. और मुझे लगता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स होंगे 8 साल बाद 10 साल बाद एक इंडिया में स्पोर्ट्स का एक अलग ही मुकाम होगा. हरियाणा के हवा में तो कुछ तो है. हवा में है, मिट्टी में है, दूध में है, क्या है कि वहाँ से मतलब हमारे देश के इतने सारे रेसलर्स आ रहे हैं. वो कहते हैं ना कि हरियाणा के दूध घी का खाना है, तो मुझे लगता है वही हमें बहुत ताकत देता है. वही ताकत देता है. निखित, what inspired you to be a boxer? मतलब कि ऐसे कैसे हुआ आपके लाइफ में, क्योंकि आपके घर में कोई बॉक्सर है? Exactly. तो मेरे घर में सारे डॉक्टर्स ही है. हाय मम्मी तो रोने लगी जब निखित ने बोला कि मुझे बॉक्सर बनना है. डॉक्टर है और रोने लगी. तो what inspired you? Actually, Laila Ali was my childhood idol, so she inspired me.
to take up boxing, and after joining boxing मुझे मैरी कॉम नहीं पता था मैरी कॉम कौन है ये सब ना। जब मैं नेशनल मेडल जीती तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ बॉक्सिंग में। तब मैंने 2009 में बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, देन 2010 में मेरा नेशनल में गोल्ड एंड बेस्ट बॉक्सर आया। तो वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। तो मैं बॉक्सिंग के बारे में जानने लग गई, बॉक्सिंग में कौन से प्लेयर्स है, कितने लेजेंड्स है, सब पता चला मुझे। देन मैंने मैरी कॉम के बारे में सुना, सो वो मेरी मतलब आइडल बन चुकी है कि 5 बार वर्ल्ड चैंपियन। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे भी उनके जैसे बनना है। नेक्स्ट मैरी कॉम नहीं पर नेक्स्ट मतलब निखत जरीन ही बनना है मुझे, जो मुझे निखत जरीन से नाम से जाने जाए। सो दैट इंस्पायर मी टू मैंने बॉक्सिंग में आगे जाने का ये सोचा है। What about you, Deepika? I mean, how did it come into your life? I actually come from a family where all of us actually played sport. Okay. My mom captained the Indian cricket team in her days. My granddad played basketball for India, and my grandmom was an athlete for India. Wow. So I come from a family where sport was the only way out. We had to play sport. But how I took up squash, I mean, I played tennis for 2 years, and my grandmom pulled me off the tennis court saying, "You're getting too tanned. You can't play tennis outdoor." Oh, So I sat home. So I sat home for a year, and then one day my best friend went to the squash court, and that's how I started playing. It was by accident. That's surprising that you come from a family of sports, but stereotypes, I mean, we all deal with that, and it doesn't matter where you come from in the world. Everybody deals with stereotypes. And one of the people that tries to break stereotypes is Adidas, and especially with the Here to Create campaign, we're hoping that we can get people to think out of the box, push themselves, innovate and create. And अभी मैं stereotype की बात कर रही थी, और मुझे पता है कि ये रेसलिंग जो है, मतलब it is male dominated. So what were the difficulties that you also had in just trying to break that? मतलब क्या problems थे आपके लिए? अगर प्रॉब्लम्स अगर किसी ने मतलब ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया तो मेरे पिता ने किया, क्योंकि हम बच्चे थे और सब कुछ मेरे पापा देखते थे, कोच मेरे पापा थे। तो हमारे लिए मुश्किल सबसे जो था वो था सुबह 4 बजे उठना, और उठने के बाद 3-4 घंटे ट्रेनिंग करना, फिर स्कूल जाना और फिर वापस आके वही ट्रेनिंग। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वही था, और बाकी की सभी चीज़ें समाज की तरफ से लोगों का बोलना, वो सब चीज़ें मेरे पापा को झेलनी पड़ी। All right.